Start again. Yes, stopped. All right. Yes. So today we are going to discuss the very important topic, sports talent identification. Like this is like a two lecture series. One part is what is sports talent and how. Second part is how we identify the talent and the development of the talent later on. So today we will Yes. discuss only sports talent identification. So सर ने मेरे बारे में पहले बता ही दिया है. सो मैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हिमाचल में जॉब करता हूँ, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में. सो इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आई हैव डन पीएचडी ऑन दिस टॉपिक ओनली, sports Wow. talent identification. So next slide please. Why we play sports? Importance of sports in human life. Sports and games are also important, like food and fresh water. It is a necessity, and important. It also play important role in the development of the personality of a child. It help the child to develop as a leader, as a good citizen, and it also inculcate all the quality of a good citizenship. We can already discuss that England, Germany, Argentina, USA, these countries, they have developed physical education and sports at grassroots level, and their curriculum have a great importance for physical education and sports. Next slide, please. So, as I earlier discussed that sports, it is very important, because when we involve in the sports, our child, our student involved in the sports, their physical development occurs. All the system of their body becomes solid. Not only physically, they intellectually become very brainy. There are so number of research that sports and exercise play very vital role for the intellectual development. Social qualities, cooperation, sacrifice, brotherhood, leadership qualities, these all are the basic outcomes of the sports and physical education. Next slide, please. So a child must involve in the sports. This is the basic sports, not a competitive one. हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं फिलहाल ओनली स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं. लेटर ऑन वी विल मूव टू द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स. बेसिक स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है वो हमने डिस्कस किया, बिकॉज साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी. सो रिसर्च हैव प्रूव दिस थिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो व्हाट इज टैलेंट? It is a special natural ability or aptitude, a capacity for achievement or success. This is a natural ability to be good at something, especially without being taught. आपको कुछ पढ़ाया नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास फिर भी कुछ स्पेशली ऐसी चीज है जो आपको पढ़ाई नहीं है, आपके पास आपको ट्रेन नहीं किया हुआ. यू हैव ए नेचुरली, यू एक्वायर्ड नेचुरली. नेक्स्ट स्लाइड. सर इसको व्यू कर लीजिए, स्लाइड शो कर लीजिए, स्लाइड शो. Yes. Now next is what is sports talent. So like हमने जैसे talent का देखा कि it is a natural ability without training. The sports talent is the athlete's innate or learned ability to combine factor that contribute a performance into a successful whole. वो ऐसे उसको contribute करते हैं उसकी different factors को कि उसका outcome जो है वो success उसको मिलती है स्टेज पे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, व्हाई वी नीड स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन. अभी आपको हमने डिस्कस किया कि कोई भी सक्सेसफुल कंट्री के लिए अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो दो चीजें उसकी डिफाइन करती है, मतलब दो चीजें उसके रिलाई करती है. एक तो है कि इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए वो टैलेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड द डिग्री ऑफ ट्रेननेस दे अचीव. एक तो टैलेंटेड पर्सन चाहिए, हमें स्पोर्ट्स पर्सन चाहिए, और दूसरा उसकी जो ट्रेनिंग है उसकी डिग्री
कितनी हाई है ताकि वो सक्सेसफुल मतलब एक एथलीट बन सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या? नहीं तो कोई दिक्कत आ रही है तो Yes, please continue. Class of meeting us. हेलो 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 राणे बोलिए। Yeah, continue, continue. Manish ji, continue. थोड़ा नेटवर्क यस। कैमरा कितने जाऊंगा? या मनीष जी वही अपना। मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस कंटिन्यू। हाँ वो सर प्रॉब्लम होगी। कोई नहीं वो हम लोग तैयार है मेंटली उसके लिए। वी कंटिन्यू। So there are many conditions necessary for successful persons in modern sports. One of these are inherent talent. एक तो inherent talent है, ठीक है, एटीट्यूड है, जो आदमी को बाय बर्थ जो है वो टैलेंट मिलता है। दूसरी थिंग है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न इन कंटेम्परेरी स्पोर्ट्स। अब एक तो है कि टैलेंट तो है, लेकिन उसका अर्ली जो है वो आइडेंटिफिकेशन भी तो होना चाहिए। उसके लिए एक प्रोसेस है कि हमारे पास टैलेंटेड हैं लोग बहुत, जैसे इंडिया में अभी हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जरूरत क्या है उसकी आइडेंटिफिकेशन की, कि कैसे आइडेंटिफिकेशन की जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो हेलो। यस आई एम डूइंग। हाँ सर मैं मेरे को होस्ट करिए, मैं सर शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। हाँ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ मैं पहले स्टॉप कर लेता हूँ। जी मेरे को होस्ट। हाँ जी प्लीज। मैं एक्चुअली वो दूसरी चीजें आती है ना, माइक म्यूट करना। जी यस नाउ यू कैन शेयर। ओके सर। राइट। At the school. Request just mute your mic, audience. Welcome, Dr. Shailendra Dubey. Very good evening. Very good evening. Very good Very evening. sorry. Just got stuck up. No issue. आज हिमाचल की हवाएं आ रही हैं इधर। अरे कमाल है। बहुत सारे फ्रेंड हिमाचल से हैं। अच्छा that's nice. अच्छी जगह सुनने को मिली। हेलो। हाँ मनीष जी वेलकम। हाँ सर, कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? अभी हम आपका नाम देख पा रहे हैं, स्क्रीन शेयर हुई नहीं है अभी। नहीं हुई क्या? मैंने करी है सर स्क्रीन शेयर। अभी सिर्फ आपका नाम आ रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो ऑफ किया हुआ अपना, तो जो आपका ये क्रिएटिव बना हुआ है वो आ रहा है। वेलकम संतोष कुमार जी, आप एक बार फिर से कीजिए। जी कोई बात नहीं, रिलैक्स।
मोस्टली 40 प्लस के हैं, तो बीपी भी हाई नहीं करना अपना, बी रिलैक्स। सर देखिए अभी मैं हाँ कीजिए। पहले आप पावर शेयर पॉइंट खोल लीजिए स्क्रीन पर अपनी, पहले पावर पॉइंट ऑन कर लीजिए। देखिए सर अभी स्क्रीन शो हो रही है क्या? नहीं अभी नहीं हो रही। आप पावर पॉइंट ऑन कीजिए पहले, फिर शेयर को क्लिक करके देन आप सिलेक्ट कीजिए उसको। हाँ, yes, yes. ओके 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 1 मिनट सर। कोई बात नहीं, हम लोगों ने भी अपनी जनरेशन से सीखा है। लास्ट ईयर जब मार्च अप्रैल 2020 में जब हुआ था सब, तो कितना लर्निंग हुई है हम सारे 40-50 प्लस वालों की। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों ने सिखाया मुझे तो अपने बच्चों ने बताया कि पापा ऐसे कीजिए। तो वी हैड दिस मार्च, आपने सही कहा, मार्च अप्रैल में जब लेक्चर्स हम लोग ने शुरू किए थे तभी हुआ था ये कि भाई बीच में कैसे अपलोड करने हैं, क्या करना है। हमारे सर देखिए स्टार्ट हो रहा है क्या अभी? अभी नहीं। हमारी जनरेशन सबसे ज्यादा लकी है कि सबसे पहला वीडियो गेम भी हमने खेला है। यस, वेरी मच राइट। सर वो हेलो हाँ जी, सर आपने मेरे को होस्ट किया है क्या? हाँ जी, हाँ जी, मैंने किया। मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर साइमल्टेनियसली। नहीं मैं शेयर कर रहा हूँ लेकिन हो क्यों नहीं रहा? मैं अभी देखिए मैंने शेयरिंग, मेरा इधर से शेयरिंग हो गया है। हाँ। मैंने शेयरिंग पे जाके मैंने किया है, तो आप आपको पहले ना जूम को मिनिमाइज करके आप पावर पॉइंट ऑन कर जी लीजिए। जी मैंने ऐसे ही किया है सर। मैंने शेयर ऑन किया है, पहले हाँ। उसको पीपीटी खोल रखा है और हाँ। शेयर किया है, स्क्रीन शेयर किया है, उसके बाद मैं उस पे जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करके पीपीटी वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा विंडो, उसे क्लिक करें। हाँ किया सर। देखिए आप, मेरे को लगता है आपने होस्ट नहीं किया सर मेरे को। किया हुआ सर। मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर साइमल्टेनियसली, ड्यूल मॉनिटर रिकमेंडेड। आप मेरे को सोल होल कर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, है ना? जी ये जी कर देता हूँ। आई विल मेक यू होस्ट। Yeah, I make you host now. This one. Now all rights to you. ओके थैंक यू सो मच। Yeah. ओके अभी देखना सर, बताइए अभी हो रहा है शेयरिंग? नहीं, आप मुझे अपना असिस्टेंट ही बना लीजिए आज के लिए, मुझे अच्छा लगेगा। अब आप चलिए मुझे सर होस्ट वापस कीजिए। आप ही दिखाइए। आप मुझे होस्ट बनाइए फिर से। तो मैं जो ऊपर स्पा इंडिया आ रहा है उसको, वहां जाइए, मोर पे क्लिक कीजिए। जी मोर पे किया सर। हाँ, वहाँ मेक होस्ट आ रहा होगा ऑप्शन एक। ऑडियो चैट रिकॉर्ड सिक्योरिटी मीटिंग सेटिंग, इसमें तो नहीं आ रहा सर। नहीं डॉक्टर राणा, आप पार्टिसिपेंट्स पे जाइए। हाँ, जी 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 वहाँ पार्टिसिपेंट। पर अपने जो स्पा इंडिया का वो है ना, उस पे आप क्लिक राइट करेंगे मैम। तो मोर आ जाएगा। ओके ओके मैम ओके। सो देन यू विल बी एबल। हाँ यस मैम, स्पा इंडिया आया है। मेक होस्ट। ओके ओके हो गया मैम, चेंज हो गया। थैंक यू सो मच। होस्ट आ गया। मैं फिर से अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो सॉरी आप सब लोग। नो इश्यू, सारे फ्रेंड्स हैं। इट इज आवर ओन प्लेटफॉर्म। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ जी जुड़े जी हुए जी, हैं। इट इज ऑल वेरी गुड टू। तो क्या है सर, आई एम ऑपरेटिंग थ्रू माय मोबाइल फोन ना, बिकॉज हाँ वही राइट इशू राइट राइट राइट, वही इशू आया। में पावर का वो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। रक्कड़ जगह पड़ती है वहाँ पे, सुबह का स्टेशन वो सारा वो बस्ट आउट हो गया है। तो ओके ओके। तो वाईफाई नहीं चल रहे हैं, तो फोन से ही चला रहे हैं। तो हम लोग उत्तराखंड से काफी फेमिलियर हैं, हमारे लगभग हर दूसरे दिन वेबिनार होते हैं, तो डोंट वरी फॉर दैट। है ना? यस सर वो पीपीटी करिए शेयर। हाँ मैं कर रहा हूँ। सो सर हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि दिस टाइम 238 एक पावर पैक कंटिनेंट हमारा ओलंपिक्स में जा रहा है, जो प्रीवियसली इन 2016 जब एथेंस में था तो आई थिंक 117 द स्ट्रेंथ वाज। तो लगभग हम मान के चल रहे हैं कि हमने डबल अपनी स्ट्रेंथ की ओलंपिक क्वालिफायर की। तो दिस टाइम मे बी वी गॉट डबल मेडल्स। ज्यादा चांसेस बन रहे हैं हमारे पास, पिछले साल से ज्यादा डबल मेडल, डबल से भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमारी इस बार जो है वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है।
लेकिन वही आज बात चल रही थी कि स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की। सो दूसरा ये बात कर रहे हैं कि अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर लें सर, तो एक तो क्या होता है कि सर पिछली स्लाइड पे आए सर। हाँ बस बस, हाँ बस, अर्ली आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे। तो उसके लिए द पर्सन जो गेम है उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल जो प्लेयर रहेगा, जो बच्चा रहेगा, बडिंग टैलेंट रहेगा, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन का ये फायदा है, एक तो वो सुटेबल गेम की तरफ जाएगा, और दूसरा वो अर्ली अगर स्टार्ट करेगा तो अर्ली फिनिश भी करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके टैलेंट की अर्ली कर लेते हैं हम, तो वो ही एंड और शी एंड अर्ली, तो वो उसको अचीव करने में जल्दी जल्दी अचीव करेगी। वो एवरेज एज जो हम मान के चलते हैं वो लगभग 24 से 25 साल, 24 टू 25 इज द एवरेज जो बेस्ट परफॉर्मेंस एज है ओलंपिक्स का, वो हमने मान के मतलब मानते हैं साइंटिस्ट कि इट इज 24 टू 25। तो ऑब्वियसली अगर हमने उस एज में परफॉर्म करना है बढ़िया, तो हमें 7 या 8 साल पहले ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, राइट? तभी हम ओलंपिक लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है? लेकिन कई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ऐसी हैं, जैसे जिम्नास्टिक है, बैडमिंटन है, यू कैन स्टार्ट लिटिल बिट मोर अर्ली, आप छोटी एज में भी। लेकिन जो स्ट्रेंथ की है, जिसमें पावर्स हैं ज्यादा है, या मस्कुलर जिसपे लोड ज्यादा पड़ता है बॉडी पे, तो ऐसी स्ट्रेंथ वाली गेम्स हम छोटी ग्रोइंग एज में छोटे बच्चों को नहीं कराते हैं, जैसे 7, 8, 9, तो उसके बाद ही करनी चाहिए 10 और 11 के बीच में। लेकिन बैडमिंटन है, जिम्नास्टिक है, अदर गेम्स है, वो आप अर्ली एज में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नंबर 11। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड, ये हो गया सर। सर अगर आप व्यू ऊपर से करें तो नहीं होगा सर? चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, उसमें सर जो की है ना, ये स्क्रॉल वाली की, अप डाउन लेफ्ट राइट, वही डाउन लेफ्ट राइट से ही मैं करना चाह रहा था जी। नहीं, अगर मैं व्यू पूरा ले रहा हूँ तो वो नहीं आता, उसमें शायद शेयरिंग में कुछ इश्यू है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। सो हम बात कर रहे थे कि अर्ली डिटेक्शन की जो है, अभी इंडिया में क्या है सर, इंडिया में जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज होता है मोस्टली। अगर हम बात करें ग्रास रूट लेवल पे, देखिए अभी आप देख रहे होंगे कि जो प्लेयर्स ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत सा पैकेज होगा। पैकेज इन द सेंस कि जब वो जीत के आएंगे, तो जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है 5 to 6 करोड़ रुपीस ऐसे उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वो अलग से वो रिवार्ड देते हैं। जैसे जो हमारे बिजनेस जो हमारे हाउसेज हैं, बिग हाउसेज है, वो अलग से उनको जो है वो रिवार्ड देते हैं। तो इस तरह आज कोई ओलंपिक में मेडल लेके आता है तो मतलब वो करोर्स उसको मिलते हैं, करोर्स, मे बी मोर देन 20 करोड़ अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आएगा तो मिलता है। और कई स्टेट्स ऐसी हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत अच्छा उन्होंने अकोमोडेट करते हैं। लाइक अभी हम हरियाणा की बात करते हैं, तो मोस्टली जितने प्लेयर हैं वो दे आर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको डीएसपी की पोस्ट मिलती है इमीडिएटली। अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आते हैं तो दे विल डिप्यूटेड एज डीएसपी। जैसे अभी पीवी सिंधु को जो है, पीवी सिंधु जो हमारी बैडमिंटन स्टार है, उसको कर्नाटक गवर्नमेंट ने उसको जो है वो पीछे एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, जैसे पीसीएस रैंक का उसको ऑफिसर अपॉइंट किया था। तो ये जो चीजें रहती है, रिवार्ड्स, ये सारी चीजें, ये भी टैलेंट जो है वो स्पोर्ट्स के लिए और टैलेंट को, बडिंग टैलेंट को आगे ग्रूम करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्लाइड नंबर 13। बस इससे, हाँ इससे नीचे कर। यस, सो एडवांटेजेस क्या है, जैसे हमने पहले किया था, हाई लेवल परफॉर्मेंस के लिए जितनी भी जो परफॉर्मेंस के लिए वो रिड्यूस होता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? उसको पहुंचने के लिए टाइम रिड्यूस, और जो उसकी लिमिट्स रहती है प्लेयर की, वो ऑलरेडी मतलब उसको लिमिट्स को रिमूव कर दिया जाता है टाइमली, जो उसकी लिमिट्स रहती है। एंड हायर लेवल ऑफ द स्पोर्ट्स इंक्रीज, जो हमारे पूरे एक हमारे पास पूरे, जैसे इंडिया की बात करते हैं, तो हम अगर हमने टैलेंट आइडेंटिफिकेशन ढंग से किया होगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ टैलेंटेड प्लेयर जो हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जो कि हमारे पास हम उनको ओलंपिक के लिए ट्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
Yes. The national team. Yes sir, that is one. So ये होमोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक नेशनल टीम में हमें मिलते हैं क्योंकि हमने बहुत सा टैलेंट हंट किया होता है, तो हमारे पास एम्पल टैलेंट होता है। तो जैसे हमने अभी वो क्रीम निकालते हैं, मिल्क में से क्रीम निकालते हैं, अगर हमारे पास ऐसा टैलेंट रहेगा, रॉ टैलेंट रहेगा, तो उनको हम सिस्टमेटिकली ढंग से उनको डिफरेंट हम उनकी अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, फिजिकल एंड मोटर एबिलिटीज, जो ट्रेड्स उनके फिजिकल फिटनेस के रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम टाइम उसको हम हायर अचीवमेंट के लिए उसको ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है। कुछ एक ऐसी पोटेंशियल्स होती हैं हमारे अंदर, इनबॉर्न क्वालिटीज होती हैं जो हमें हेरिडिटरी मिलती है। ठीक है, वो जो है वो हेरिडिटी होती है, वो ट्रेनेबल नहीं होती है। सम एक्सटेंट वी कैन ट्रेन, बट मोर और लेस दे आर इनहेरिटेड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Yes. Certain sports require predominantly such attribute of physical fitness as speed, strength, agility, cardiovascular endurance, flexibility, etc. The research, they have proved that speed and agility are hereditary. मैंने अभी आपको बताया ये अनुवांशिकता है। ठीक है, ये जेनेटिकली अवेलेबल रहती है प्लेयर के अंदर। We can say that player are born, athletes are born. ठीक है, बट दे मे बी मेड, बट मोस्ट इसमें रिसर्च में अभी कॉन्ट्राडिक्शन हम आगे बात करेंगे कि कैसे ये नेचर और नर्चर, ये दो चीजें हमारे टैलेंट को जो है अफेक्ट करती है। ठीक है, विच डिपेंड अपॉन द मॉर्फोलॉजिकल, जो भी अभी बात कर रहे हैं, दिस इज द मॉर्फोलॉजिकल, जिसमें हम एनाटॉमिकल, उसका स्ट्रक्चर, उसका हाइट, वेट, बोन डेंसिटी, और उसका फिजियोलॉजिकल, जैसे उसका कैपेसिटी ऑफ लंग्स, ब्लड वेसल्स, और उसका लंग्स के बाद उसका अपना अंदर उसके जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रियाज रहेंगे उतना ज्यादा उसको एनर्जी देर तक मिलेगी और वो ज्यादा एंडोरेंस टाइप स्पोर्ट्स में करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। ठीक है, what the researchers, sports scientists thought that sports believe that athletes are born and made. Next slide please. अभी हमारे अगर हम बात करें सर एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकली, तो डियर फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर टू टाइप ऑफ मसल्स, वैसे तो मसल थ्री टाइप के होते हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक टाइप मसल, जिसको हम बोलते हैं। लेकिन जो फाइबर्स की बात करते हैं, मसल में जो फाइबर्स होते हैं, बेसिकली दे आर टू टाइप्स, स्लो ट्विच फाइबर्स एंड द फास्ट ट्विच फाइबर्स। अब ये स्लो ट्विच एंड फास्ट ट्विच क्या है? जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, दे बेसिकली उनका कलर होता है रेड। जो फास्ट ट्विच होते हैं वो होते हैं व्हाइट कलर के। अब होता क्या है कि हमारे सबके अंदर मसल तो दोनों फाइबर्स टाइप के होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि डोमिनेंस किसका है। मेरे अंदर हो सकता है भीष्मपाल जी है, शारदा जी है, तिवारी जी है, सबके अंदर फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स हैं। लेकिन व्हाइट और रेड ये कॉम्बिनेशन में होते हैं, जिसके में जो डोमिनेंस जिस फाइबर्स का ज्यादा होगा, उसका वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में उसका वो उसमें ज्यादा होगा। अब ये फाइबर्स करते क्या है? बेसिकली फाइबर्स एक जो से हमारी एथलेटिक्स में डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस रहती हैं एंड शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस रहती हैं। तो जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, बेसिकली ये शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस के लिए एकदम एक्सर्ट करते हैं, इमीडिएटली फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इनका फास्ट होता है, लेकिन फटीग जल्दी हो जाती है। जो फास्ट ट्विच मसल होते हैं, इनकी बात कर रहा हूं। फास्ट ट्विच मसल जो होते हैं वो फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये जो है वो व्हाइट कलर के होते हैं। लेकिन जब स्लो ट्विच की बात करते हैं, स्लो ट्विच मीन ये लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस के लिए स्लोली ट्विच करते हैं, लेकिन देर तक विदाउट फटीग, मतलब इसकी जो थकावट है, फटीग, वो लॉन्ग टाइम के बाद होती है। जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस सक्सेसफुल एथलीट्स हैं, अगर उनका हम मसल फाइबर जो हम उनका टेस्ट करें, तो आप पाएंगे, आप हैरान होंगे कि उनका प्रीडोमिनेंस जो है वो स्लो ट्विच मसल लॉन्ग डिस्टेंस में ज्यादा रहेंगे। क्योंकि स्लो ट्विच मसल मैंने पहले आपको बताया, इसमें ये फटीग को रेसिस्ट करते हैं, फटीग को देर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक। और जो फास्ट ट्विच है वो जो है वो फास्ट काम करते हैं, जल्दी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं,
लेकिन जल्दी फटीग करते हैं, जैसे 100 200 स्प्रिंट शॉर्ट रेसेस के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब आपने देखा होगा, ये फिर से टाइप ऑफ फाइबर्स की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने चीजें बताई वही ये सेम थिंग है। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, हैव यू एवर सीन ए ब्लैक और नाइजीरियन, जमैकन, अफ्रीकन जो है वो आपने किसी को स्विमिंग पूल में या स्विमिंग में, एक्वेटिक्स में किसी को गोल्ड मेडल ओलंपिक में देखा होगा? वेरी रेयरली, बहुत कम होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो ओनली व्हाइटिश पीपल दे कैन स्विम, ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग जो है वो स्विमिंग में जीत पाते हैं। क्यों? बिकॉज स्विमिंग करना तो आसान, मत कोई भी कर सकता है, लेकिन ओलंपिक लेवल जैसे कंपटीशन को फाइट करना और उसमें मेडल लेना, इट इज रेयर। ये हमारा जो है वो हमारी बायोलॉजिकल, हमारी मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है ओलंपिक लेवल पे हमारी परफॉर्मेंस के लिए। अभी 100 मीटर की बात करते हैं। हमारे इंडिया में जो बेस्ट एथलीट है शॉर्ट स्प्रिंट में 100 मीटर में, उसका मे बी 10.40 या 30 है, 10.30 सेकेंड 100 में। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो ये 9.76, जब मॉरिस ग्रीन ने फर्स्ट टाइम 9.76 आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब टाइम क्लॉक किया था, तो बायोमैकेनिकल जो हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट रहते थे वो बोलते थे कि ओनली मशीन कैन ब्रेक दिस रिकॉर्ड, नॉट ए ह्यूमन। लेकिन फिर भी उसके बाद ओसाफा पाबल आए, उसेन बोल्ट आए, उन्होंने उसको इंप्रूव किया, डे बाय डे इंप्रूव करते गए। तो ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल लिमिट्स जो है वो ओलंपिक लेवल के एथलीट के अंदर आती है। तो वो डिटेक्शन करने का इंडिया में अभी तक ऐसी लैब्स नहीं है हमारे पास। वी आर लैकिंग बिहाइंड दिस थिंग। अभी तक हम हिट एंड ट्रायल मेथड पे हैं। ठीक है, हमारे पास कई हमने कोचिंग सेंटर्स खोले, हम आगे डिस्कस करेंगे, नर्सरीज खोली है, क्रीड़ा प्रबोधनीज हैं, स्पोर्ट्स हॉस्टल्स हैं, स्पेशल एरिया गेम्स हैं, लेकिन फिर भी उतनी नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेक्ट स्कीम है हमारी इंडिया की, लेकिन फिर भी हमारे पास वो बायोमैकेनिकल लैब्स नहीं है, स्पोर्ट्स मेडिसिन की इतनी अच्छी लैब्स नहीं है, फिजियोथेरेपी में बहुत अच्छी एडवांसमेंट अभी हमने नहीं की है। तो ये सारी चीजें हमारी जो है वो लिमिट करती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो हम मॉर्फोलॉजिकल बात कर रहे थे हमारी बॉडी के अंदर, जो हमें अपने फोर फादर से मिलती है, वो एक जीन, जो जीन की बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं, तो ये मेरे लेफ्ट साइड जो है वो रेड मसल्स फाइबर है और राइट साइड है व्हाइट मसल फाइबर्स। अभी आपको पहले ही हमने डिफाइन किया था जैसे, तो रेड मसल्स आर ए टाइप ऑफ skeletal muscle which are dense with the capillaries and is rich in myoglobin and mitochondria. ये डेफिनेशन, यस दिस वन सर। तो इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, ठीक है, रिच इन मायोग्लोबिन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, वो ज्यादा जनरेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी रहता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं व्हाइट, जो राइट साइड है, दैट इज व्हाइट मसल्स आर आल्सो ए टाइप ऑफ स्केलेटल मसल बट contains lower amount of myoglobin and mitochondria. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम रहेंगे। और इंटरेस्टिंगली आप हैरान होंगे ये बात सुन के, अभी रिसर्च में प्रूव हुआ है कि जो काउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, जो सेल का पावर हाउस है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सेल मसल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मसल जितनी जल्दी और जितनी देर तक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे उतना हम अच्छा स्पोर्ट्स में करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियाज आर ट्रांसफर फ्रॉम आवर मदर्स टू द किड। हमारे फादर से माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर नहीं होता है, जितने हमारे अंदर इसके काउंट्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, वो ड्यू टू आवर मदर। लेकिन वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग। ओके, माइटोकॉन्ड्रियाज नेक्स्ट फिट आ गया, मोर इन नंबर्स इस साइड रेड मसल्स में एंड व्हाइट मसल्स में कंपैरेटिवली लेस इन नंबर। फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात आती है, रेड मसल में ये जो है एसआर होता है, हैव रिड्यूस्ड, कम मात्रा में होता है, और व्हाइट मसल में ये ज्यादा होता है। अब ये एसआर क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, ये बेसिकली ये स्पीड मसल बोलते हैं इसको। ये स्पीड को जो है
वो एनहांस करता है, इट इज कोरिलेटेड विद स्पीड, मतलब ये स्पीड का एक फ्रेंडली मसल है, ठीक है। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक की बात हो रही है, तो ये रेड मसल फाइबर में जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसमें कम होता है, लेकिन व्हाइट में ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज फटीग, थकावट। तो फटीग की बात वही हम कर रहे थे कि जो रेड मसल्स हैं उसमें दे कैन रेसिस्ट, क्योंकि उनमें लैक्टिक एसिड जो होता है ना, कैन परफॉर्म एरोबिक ऑक्सीडेशन विदाउट एक्यूमुलेशन मच लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड होता है आफ्टर सम टाइम, सम एक्टिविटी, जैसे 30 मिनट 20 मिनट, हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड स्टोर होता है, जो कि मसल को स्टिफ करता है, जिससे कि हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ती नहीं है, ठीक है। बट अगर अगर हम राइट साइड बात करें, ठीक है, व्हाइट मसल्स में, तो उसमें जो है वो लैक्टिक एसिड अकोमुलेशन फास्ट होता है, और फटीग जो है वो जल्दी होती है, ठीक है। अभी बात आती है रेट ऑफ कंट्रैक्शन की, नेक्स्ट डिफरेंस जो हमारे दोनों में है। तो रेड मसल फाइबर में स्लो रेट ऑफ कंट्रैक्शन होता है, अब जैसे मैंने बताया, लेकिन देर तक लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में। और इधर हम राइट साइड में बात करते हैं व्हाइट मसल्स में, ये स्प्रिंटर्स जो होते हैं, जो बिल्कुल स्टाउट रहेंगे, हट्टे कट्टे रहेंगे 100 मीटर वाले, ये फास्ट कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो एग्जांपल है एक्सटेंसर मसल, जितने हमारी बॉडी को एक्सटेंशन देते हैं, हमारे मसल्स को एक्सटेंड करते हैं, हम हाथ एक्सटेंड करते हैं, कोनी एक्सटेंड करते हैं, एल्बो एक्सटेंड करते हैं, तो उसमें पाए जाते हैं। और हमारे मसल ऑफ आईज जो है, ये व्हाइट मसल फाइबर उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये था मैंने बायोलॉजिकल, ये हम बात कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल लिमिट्स भी है हमारी स्पोर्ट्स टैलेंट आइडेंटिफिकेशन में। हम जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे लें, लेकिन जो बायोलॉजिकल हमारी लिमिट्स है वो हमारे, मैं ये स्लाइड में क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाई आई एम शोइंग दिस स्लाइड, बिकॉज इंडिया हैव लैक ऑफ दिस फैसिलिटी नाउ। हमारे पास है लैब्स, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में है, जैसे वहां पे नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, अभी थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वी हैव टू माइल्स टू गो। अभी हम बहुत दूर तक जाना है, अगर हमने उन देशों की, उन कंट्रीज की हमने अभी अगर पहुंचना है। तो देखिए ये एक स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर मीन 100-200 मीटर, जो शॉर्ट स्प्रिंटर रहता है। तो उसके बॉडी के अंदर अगर हम उसको हम देखें, उसका मसल बायोप्सी टेस्ट करें, बायोप्सी जो टेस्ट होता है हमारा कैंसर में भी होता है ना, बायोप्सी टेस्ट जिसको बोलते हैं, बायोप्सी टेस्ट में अगर हम देखें तो फास्ट ट्विच मसल देखिए इसमें कितने हैं, ये सारे फास्ट ट्विच मसल है जो पिंक जैसे हैं, बेसिकली ये व्हाइट है लेकिन पिंक दिखाया यहाँ पे। तो इसमें नंबर ऑफ ये जो फास्ट ट्विच मसल है फाइबर ये ज्यादा है, और स्लो ट्विच इसमें कम है। इसके अगर हम बात करें तो 80% इसमें फास्ट ट्विच है। तो ये अच्छे स्प्रिंटर में ये अच्छे ऐसे 80% फास्ट ट्विच मसल पाए जाते हैं जो व्हाइटिश कलर के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये आप देख सकते हैं एक स्प्रिंटर का, अगर हम देखें, ये देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है मसल्स यहाँ पे उसका जो है वो बताया गया है, डिफरेंट 3 एक्टिविटी है। सबसे पहले पर्पल कलर में लेफ्ट साइड से देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, ठीक है। तो इसमें व्हाइटिश मसल का डोमिनेंस कम होगा, रेड ज्यादा होंगे, ठीक है। देखिए इसमें रेड ज्यादा है, ठीक है। रेड जो है वो देर तक जो है वो काम करते हैं और वो फटीग रेसिस्ट करते हैं। अगर हम सेकंड में आए, ये है मिडिल डिस्टेंस रनर, जो ना तो छोटी दौड़ होती है ना हो लंबी दौड़ होती है, मिडल वाले, जैसे आप 800 मीटर 1500 मीटर, इनमें देखो कॉम्बिनेशन रहता है मिडिल डिस्टेंस में। इसमें व्हाइट भी सेम है और रेड भी है, दोनों इकट्ठे हैं। इसमें दोनों का ही क्वांटिटी लगभग 50-60-40 या 40-60 रेशियो रहती है। आगे थर्ड में जो पिंक में है ये रेडिश टाइप है, तो इसमें देखिए व्हाइट का डोमिनेंस ज्यादा है, वही जो 80-20 की बात कर रहे हैं स्प्रिंटर में, थर्ड वन में राइट साइड में लास्ट वाला। तो ये स्प्रिंटर है। तो ये तीनों का ये जो है आप इसमें देखिए इनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखिए, सॉरी फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखिए। ये मसल का अगर हम इसको अगर बायोप्सी टेस्ट देखिए लैब में तो कुछ ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे फिर बात आती है डज नेचर और नर्चर मेक टॉप स्प्रिंटर। अब बात ये आती है, तो क्या हम ये मान के चले कि भाई अगर वो नेचुरली ही स्प्रिंटर बनते हैं तो हम तो ट्रेनिंग छोड़ दें, ठीक है ना, तो हम ट्रेनिंग कराएं ना। तो इसके ऊपर भी हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मतलब दे आर इन दैट ओपिनियन
कि देखिए जमैकन कंट्रीज, अमेरिकन और वेस्ट अफ्रीकन जो कैरेबियन कंट्रीज है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो फास्ट रेसर होते हैं, मतलब जिसको हम शॉर्ट रेसर 100-200 वाले, ठीक है। तो वो उनका जीन ऐसा होगा कि जिस तरह से वो इसी कंट्रीज के जो है, वो जैसे उसाफा पावल है ना, उसेन बोल्ट है, मॉरिस ग्रीन, सेम कंट्री के सारे लोग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेम ओरिजिन के हैं। तो ये आई थिंक डॉक्टर साहब, जी सर, हमें थोड़ा ओपिनियन लेने चाहिए, हमारे और भी साथी हैं, और मुझे ये टेक्निकली इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने बच्चों के साथ ये सेशन अटेंड करना चाहिए, क्योंकि 1000 पेरेंट्स के फोन पिछले 5 साल में आया कि अपने बच्चे का करियर अच्छा चाहते हैं स्पोर्ट्स में जी। और मैं उन लोगों को बोलता हूं कि आप लोग फिजिकली नहीं आ सकते, खाली बोलने से नहीं होगा। ये जो हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट आते हैं डिफरेंट ग्राउंड से, जी, तो अब इसी में ही आपने मसल्स का फिजियोलॉजिकल और सारी चीजें जो बताई हैं, अगर वो इसे समझ लें ठीक से, तो उन्हें पता लग जाएगा कि इनको न्यूट्रिशन कैसा देना है, डाइट कैसा देना है, जो हमारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। और हमारी मॉर्निंग में भी आपसे बात हुई थी कि इसका पार्ट 2 भी हमें करना है, पार्ट 3 भी, पार्ट 4 भी जी। तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो क्या इसको हम एवरी ट्यूसडे सेम टाइम फिक्स कर दें, जिससे कि हर पेरेंट्स को, सबको मैसेज चला जाए कि यस दिस इज द राइट थिंग विच नीड इन आवर वार्ड। हम बच्चे के लिए कहते बहुत है लेकिन करते कम है। मेरा विचार से सहमत है? यस, आगे रंदा। कमल जी कोई भी बोल सकते हैं। Bandu, it's a really good, I think, to educate parents, to make them aware what is the need of their ward. It is very essential, and Dr. Yes. Munish is doing something, which is बिल्कुल unique very है। important information. So why not to sensitize our parents on this issue? And that's why, and see, it is very technical also, so it requires time to understand also. Many of them are not having इतनी that डीप background. नॉलेज उनको करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलेगी। नहीं, डॉक्टर साहब को मैं देख रहा हूँ, जो हम सेवा भाव, है। जी, जी। हाँ, जो हम अपना सेवा भाव लेके चले हैं, सभी लोग सेवा कर रहे हैं इसमें। जी 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 जी। किसी से कुछ नहीं ले रहे हम लोग जी। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनीष राणा जी सर, इसका हम ट्यूसडे फिक्स कर दें 7। ओके सर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और सब लोग जो आज हमारे साथ हैं वो सब लोग इसको स्प्रेड करें, तभी ओलंपियन आएंगे, तभी मेडल्स आएंगे। बिल्कुल सर, है ना? डॉक्टर राणा, बिल्कुल। डॉक्टर राणा सर ने जो कहा है ना सर, कि ओलंपिक्स प्राइम एज है आपका 22 to 25 और कैचिंग ईयर है जो उसको कैच द टैलेंट, दैट इज 7 to 8 years, that requires, in fact, yes, that is the minimum required training required to excel in Olympics. बिना, और बड़ा अच्छा सर ने एक्सप्लेन किया है। तो why not to sensitize our parents, so they should understand, because ultimately they have to shape up the career of their wards. I remember देव सर, आप जानते होंगे वो मैडम जो शर्मा हैं, जिन्होंने अपने बच्चे को टेनिस के लिए शुरुआत किया। She was honing her skills very long back. No, that is what we want, that others should also take it on a serious note, so that it should be conveyed to everybody कि कितना यूजफुल इंफॉर्मेशन है, और यहाँ से आपका माइंड मेकअप भी शुरू होता है। तो डॉक्टर मनीष राणा सर जो बोल रहे हैं, आई फुली एग्री विद दैट। और देव सर, इसको अगर पार्ट 1 पार्ट 2 जो आप करें, जैसे फॉर एग्जांपल मसल बिल्डिंग, न्यूट्रिशन, डाइट, ये बड़े टेक्निकल हैं, और जितना अच्छा सा इसको थोड़ा करके डिस्कशन पे अगर समझाएंगे तो उतना ही अच्छा लोग समझेंगे भी। क्यों सर? डॉक्टर मुनीश बताइए आप। राइट सर, मैं एक्चुअली एक बात बोलना चाहूंगा। सॉरी सर। जी, वेलकम राम प्रवेश जी। सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर ये क्लास, क्योंकि एक्चुअली मैं कोच भी हूँ। वही हाँ। और ये सारी चीजें सर आज तक हमने कभी जानी नहीं, इसलिए कि हमको कोई बताया नहीं। जी सर। 8 साल की हमारी बेटी है, झारखंड से, वुशु में सिल्वर मेडल आई है अभी। बधाई हो सर, बधाई हो। और अपना एक स्टूडेंट सर नेक्स्ट ईयर पटियाला के लिए सर सिलेक्शन हुआ साइकिलिंग से। बहुत अच्छे। खेलो इंडिया से। अब देखिए, दीपिका कुमारी ने नाम रोशन किया हुआ अपनी टीम के साथ। जी सर, तो आपने जो अपना लड़का है मोहम्मद आमिर रिया, जो ये नीरज चोपड़ा, हेमा दास, द्युति चंद वगैरह के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो उन लोग टोक्यो चले गए।
हाँ जी 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 तो ग्रेट। मैं सर का पर्सनल नंबर भी चाहूंगा, इसलिए कि हमें बहुत कुछ सीखनी है सर आपसे। बिल्कुल, Very good. आप लगातार आइए, हम लोग ये सीरीज ही शुरू कर रहे हैं सर और हमें जैसा अपने लगता है कि सर बंधु पर्सनल बांधव, एडवाइस भी सर हमें आवश्यकता पड़े, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा मेरा वीक है। अरे प्रभु, इंग्लिश नो वीक इशू नहीं, सर। आपका हौसला बुलंद है। जी हाँ हाँ सर, जी हाँ। हमारी भी हिंदी आती है सर, हमें भी इंग्लिश हमें भी नहीं आती। सर मतलब सर हिंदी है सच्चाई हम बता वतन देना है। ज्यादा अच्छा जी होता है सर। ना। नहीं नहीं सर, इसको बिल्कुल इसको देखिए, अल्टीमेटली तो मिशन वही है कि सब लोग जो है एक्सेल करें राइट जी, irrespective जी। of तो क्यों ना हिंदी तो हम लोग का है ही है सर। यही तो स्पोर्ट्स में तो हम लोग बिल्कुल ने यही देखा कि हिंदी पे ही सारा कुछ है। कोच साहब भी हिंदी में ही बोल रहे हैं, बच्चे भी लर्न कर रहे हैं, सब कुछ है। यही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे सर शुद्ध भाषा में होता है। क्यों सर? राइट, जी, तो बिल्कुल क्यों सर, आई एग्रीड सर। यही एक ऐसा ऐसा फील्ड है जो हम लोगों ने रियलाइज किया कि जहाँ पे शुद्ध भाषा में सब कुछ चलता है, चाहे वो हमारे सीनियर कोच साहब है, कुछ हो, और सर हम लोग उन्होंने जैसा कहा वैसे ही फॉलो कर ले। तो उनकी जो टेक्निकल टर्म्स होते थे कभी कभी वो भी बड़े मजेदार होते थे, है नहीं है? तो क्यों ना हम लोग इसको जो है इसी स्पिरिट में ले, बहुत अच्छा है। और जो अभी बताया आपके तिवारी जी ने, सच एन फैंटास्टिक थिंग, इंडिया शुड कम अप। So Dev sir, what do you suggest? We totally agree. We can look forward to this kind of session in एज future यू as well. नो सर, हम तो स्पीकर का मान पहले रखते हैं, जी, अब स्पीकर जैसा डॉक्टर कहें। मुनीश अगर आप बताएंगे तो we can certainly fix up a time and we will sensitize more people regarding this so that they can at least understand. उनकी जैसे बहुत सारे हमारे कोचेज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स हैं, they will be very much happy to understand राइट all सर, this. It's a very technical one, very interesting one. राइट सर। Obviously, we will try that why they should miss this important chance. So एक दो सेशंस इसमें अच्छे से ओके, हो जाएंगे और बिल्कुल। so that will be great of you. हाँ सर, बाद में क्या करेंगे, वी कैन डू वन थिंग, दिस इज द फर्स्ट सीरीज, देन सेकेंड सेशन में एज और गेम हाँ। अप्रोप्रिएट Game appropriate, right Yes, sir? yes. Game गेम्स के appropriate. लिए कौन कौन सा क्या फिजिकल उसको जो एट्रीब्यूट्स चाहिए, कौन जी कौन सर। से पर्टिकुलर जो एनाटॉमिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किस गेम के लिए चाहिए, कौन सी एज में वो स्टार्ट करे, एक तो ये हो जाएगा। Right. जी और जी जी। दूसरा सर, जैसे आई एम ए सर्टिफाइड नाडा एक्सपर्ट, मैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो हमारी दिल्ली में है उसका मैं नाडा। Wow, okay. सर्टिफाइड रिसोर्स पर्सन हूँ। तो जी, जी, एक जी। सेशन हम डोपिंग इन स्पोर्ट्स पे भी कर सकते हैं, क्योंकि Great, sir. हमारे बडिंग टैलेंट को, बेचारों को ये नहीं पता कि उनको बुखार हुआ तो उन्होंने एक अगर डिस्प्रिन ले ली, या उन्होंने पैरासीटामोल ले ली, तो कहीं वो उनका यूरिन टेस्ट हो गया तो उसमें वो डोपिंग में भी आ सकते हैं। तो उनको हाँ। पता ही नहीं बेचारों को कि कौन Right, कौन सी right. ब्रूफिन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, कौन सा Okay. पेन किलर हम ले सकते हैं। तो ये डोपिंग पे भी हो सकता है। हाँ, sure. It's a हाँ, great आगे topic. आगे सीरीज हो सकती है सर, आगे ऐसी बिल्कुल, तीन बिल्कुल। चार एक सीरीज हो सकती है। तो Very good. हम अगर दिन बताइए कि भगवान हनुमान जी का दिन है ये मंगलवार, नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया है। आज 15 है तो ये एक हफ्ते में 1500 तक मैसेज चला जाएगा जी, कि Right. ये एवरी ट्यूसडे शाम को 7 बजे स्पेशल सेशन होता है डॉक्टर मुनीश Special शर्मा session. का। Yes, और yes. सेशन जो, क्योंकि हमारे कोचेज हैं, मैं राजीव शर्मा जी को भी देख रहा हूँ, जी, एक जी, जी, जी। बड़े हैंडसम कोच, मुझे खाली फोटो दिखाई दे रहा है योगेंद्र शर्मा जी का, क्योंकि मुझे लगा ये राजकुमार शर्मा जी आए हैं जो विराट कोहली के कोच रहे थे। क्या मुझे बात। उनका चेहरा लगा था क्योंकि मैं मिला था उनसे अभी छत्रसाल स्टेडियम में। तो योगेंद्र जी, आप भी कुछ विचार रखिए। Good evening, everyone. गुड इवनिंग जी। Dr. Munish ji, after so long I saw you. Means it is a great pleasure to meet you here, and we are training mate. Otherwise, we are from same batch from Amravati. Oh, really? इतना alumni meet हो गई, reunion। ओ सर, मेरे को It is अच्छा great. लग रहा है सर कि आप इतने बड़े इंडिया का आपने टैलेंट जो है Great. आइडेंटिफिकेशन करके उसको डेवलप किया, इंडियन टैलेंट को जो इंडिया टीम को संभाल रहे हैं। It is a very great pleasure to me. So means I joined little late because I got this message. I got this message your that pamphlet is early, but I forgot today because my classes were there, so I was busy. So I joined little late. That thanks to CK that he sent message that your Zoom ID and I could join it. I joined little 10 minutes before only, so I was listening to your conversation. It is great, means what is going on, because my son is also now coming up. He played 6 nationals in table tennis,
Oh, Wow, great. great. So it is a good thing for him also that learning is there, how things can be done. It is very, very great to you that you started this session. So we will be following this every Tuesday, what discussion is going on. So definitely we will be coming there, means on this session. So it will be great for the all humanity. Means Yes. because physically fit is everybody has to be there. So Yes. nice It of is you, great, sir. sir. Thank you very much, sir. Doing such type of things. Dr. Munish and Yoginder ji, Dr. Kanika Manish Chopra has joined with us. She is a sports nutrition, and one Mansi Gautam is with us. She is an intern on the sports nutrition from MIT University. तो सभी तरह का टैलेंट हमारे पास है. आपका फिजिकल एजुकेशन का, फिजियोलॉजी का टैलेंट, जो कि अल्टीमेट हम सबका एम है कि हमारे जो यूथ है, यंग जनरेशन, वो मेडल्स लेकर आए. और वो तभी आएगा जब आपने देखा कि जमैका का जो यूसेन बोल्ट है, उसने भी मसल्स अपनी इंक्रीज की, अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया. अब उसके साथ साथ उसका फूड न्यूट्रिशन भी कितना इफेक्टिव होना चाहिए. ये सारी चीजें अगर हम 2-3-4 स्पीकर यहाँ रहे हैं, अभी योगिंदर जी बोल रहे थे, और आई थिंक शुरू में हमारे साथ मिस्टर कमल सिंह थे साथ में, और मिस्टर भीषम पाल जी भी, सारे कोचेस हैं अच्छे लेवल के. तो इन सब का विचारधारा इसके साथ आए तो हम लोग हर मंगलवार को इसको 7 बजे का समय फिक्स कर सकते हैं. Wow, great. It's a good, very good. जी मनीष जी. राइट सर, आई एम रेडी. मैं तो इनिशियली, आपको पता है कई सालों से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं सर. सो नाइस. और ये तो हमारी फैमिली है सर. इस फैमिली को ग्रूम करना, इसको डेवलप करना हम सबका दायित्व है. ये हमारी पर्सनल जिम्मेवारी भी है. यस, जिम्मेदारी भी है, बिल्कुल. जहाँ आप बोलेंगे, हम एक अच्छी सी सीरीज बना लेते हैं. एक जैसे सीरीज है ना, कि एक चीज जो है ना, हम जैसे अभी जोगेंद्र शर्मा जी बात कर रहे थे, उनका बच्चा टेबल टेनिस प्लेयर है. तो टेबल टेनिस के लिए फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है, वो ट्रेनिंग कैसे करनी है, एक लोड एंड रिकवरी प्रोसेस होता है कि कितना लोड बॉडी को देना है और कितना बॉडी मतलब उसको फिर उसके बाद एडॉप्टेशन करती है. तो वो पूरा एक हम उसका सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इसमें सीरीज में. बीच में जैसे हमारे पास फूड एंड न्यूट्रिशन के मैम है, आप ही आपने बताया, तो उनकी सेवाएं बहुत इंपॉर्टेंट है. प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ड्यूरिंग कंपटीशन हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कैसी है, एंडोरेंस को बढ़ाने के लिए कैसी डाइट चाहिए, रिकवरी के लिए कैसी डाइट चाहिए, है ना. वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. राइट. और एक टॉपिक आपका डोपिंग में भी रहेगा. हाँ, डोपिंग रहेगा. डोपिंग मुझे इसलिए अभी ध्यान है. आई रिमेम्बर देयर वाज वन वेरी ग्रेट स्प्रिंटर, बेन जॉनसन. Yes, first case of doping. After Carl Lewis, it was Ben Johnson. Unfortunately, he was out. He was a Canadian. Yes. And then Bolt emerged. But he was a very good. He gave a very good time. But unfortunately, I don't know how he was caught into this doping, and then the doping spread everywhere. It came into the limelight. So why not our own athletes, our own coaches to sensitize? आप बहुत अच्छा बताया था कि ग्रुपिन खाने से या इस ढंग से, क्योंकि हमारे अपने एथलीट्स काफी अफेक्टेड हुए हैं इस डोपिंग केस में. कन्ना मल्लेश्वरी और ये सब भी कुछ ऐसे केसेस हैं. कन्ना मल्लेश्वरी सब लोग हुए हैं सर. जी. तो yes, that will be a very interesting session. That will be also helping us. हमारे यहाँ. और सर इसमें आप एक सेशन कर सकते हैं जैसे एथलेटिक्स के लिए. एथलेटिक्स है, हॉकी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एथलेटिक्स करते हैं, जंपिंग करते हैं. आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, so मैं अपने बच्चों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ. So even they love to know what is important in this case. Athletics क्या है, या long running जो मैराथन है, राइट सर. तो स्पेसिफिक अगर सेशंस को लेके अगर थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स को और अच्छा डिस्कस करेंगे तो दैट विल सर्टेनली हेल्प द स्टूडेंट्स. बच्चों को भी और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, राइट सर. राइट. चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन. और ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, डोपिंग, फूड न्यूट्रिशन, गेम्स प्रोसेशन. और मनीष जी, आप डॉक्टर मनीष और भी एक सीक्वेंस बनाकर आप मेरे को भेज देंगे, तो मैं वही क्रिएटिव बनाकर नेक्स्ट वीक हम लोग सीक्वेंस उसको 15 से 20 स्लाइड हर एक सेशन में लेकर चलेंगे, जिसमें आपके सेशन के बाद जैसे कनिका जी हैं न्यूट्रिशन में, मानसी हैं, यंग चैप हैं, और आपके अभी हमारे राजीव शर्मा जी भी साथ में, संतोष कुमार कौशल जी भी हैं, तरसेम लाल
योगेंद्र जी, सभी अपने अपने शहर। एक रागनी मिदा आप देख रहे होंगे नाम यहाँ पर। जी जी। रागनी जी क्रिकेट की कोच है अंबाला से। वो बहुत टिपिकल देसी चीजें बताती है। क्या बात है। बहुत देसी चीजें कि क्या खाने से क्या इम्पैक्ट आएगा शरीर पर। वो कहते हैं ना दादी माँ के नुस्खे। तो क्योंकि हर तरह का प्लेयर है हमारे पास, फाइनेंशियली साउंड प्लेयर भी है और फाइनेंशियली नॉन साउंड भी है। दाल चावल वाले भी हैं और चिकन वाले भी हैं। जी। तो हमें सबके लिए सबका ध्यान रखना। जैसे अभी झारखंड से तिवारी जी ने किया, दीपिका ने कितना नाम रोशन किया आर्चरी में। तो बहुत सारी चीजें हैं। दीपक शारदा जी साथ हैं। तो हम सब लोग मिलकर यस करें कि हम लोग एवरी ट्यूसडे चैट बॉक्स में लिख दें या हाथ का निशान ही भेज दें या माइक ही खोल के जोर से कर दें, तो हम सब लोग आते हैं। मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ ये पीपीटी, तो सभी लोग एक साथ स्क्रीन पर आ जाएंगे। यस, मैं तैयार हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। It's a very good idea. हाँ, Absolutely, sir. A very good evening to everyone. Very good evening, very good evening, madam. Yes. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Yes. सर कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ सर भी, अब सब लोग हम एक स्क्रीन पर आ गए। तो अल्टीमेट, क्योंकि मसल्स, कौन सी मसल कब कहाँ ग्रोथ करेगी और उसके लिए डाइट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम देख पा रहे हैं। राजीव शर्मा जी आपके भी विचार। जी राजीव जी आप बोल सकते हैं। I think sir का माइक म्यूट पे है। नहीं, वो अब हाँ अनम्यूट हो गया। Yes. Anyone can share their views. Everyone welcome. मानसी, आप भी वीडियो ऑन कर लें। Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, sir. यहाँ Good evening. जी राजीव जी, यहाँ पे एक ना हमारे चंद्रकांता जी होंगे पालमपुर से। सीके आ रहा है, सीके नाम। हाँ, वो सीके जी हैं। वो हमारे ग्रुप के एडमिन है, जो हमारा हिमाचल का ग्रुप है पूरे बैचमेट का। तो वो हाँ बोले, वो भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप बुलाइए मनीष जी। हाँ, वो चाय के बागान है पालमपुर में, बहुत अच्छी हिल स्टेशन है, वहां पे रहते हैं। अरे वाह, पालमपुर तो फिल्मों में काफी सुना हुआ है। बिल्कुल। और उनके हस्बैंड जो है रजिस्ट्रार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, पालमपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप कहाँ चले गए? कुछ तो बोलिए, कहाँ गए? हाँ बोलिए चंद्रकांता जी, अपना माइक अनम्यूट करके। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? मुनीश, अभी हम पालमपुर से शिफ्ट कर गए हैं, धर्मशाला में है जहाँ क्रिकेट स्टेडियम है। अच्छा, धर्मशाला। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, काफी इंटरेस्टिंग था। तो हम आगे भी कैरी करेंगे इसको। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर। हेलो, बीच में शायद आवाज नहीं आ रही क्या? अरोड़ा सर कहाँ? हाँ, मैंने माइक। अच्छा, हाँ, वो अभी इंटरेक्शन किया चंद्रकांता जी ने। वो अभी धर्मशाला में आजकल इंटरनेशनल स्टेडियम के पास, क्रिकेट स्टेडियम के पास। वेरी नाइस। वहाँ तो लोग जाके सेल्फी लेके सब जगह डालते हैं कि सबसे ऊंचाई पर बना हुआ स्टेडियम है। सर आप भी आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, सभी आइए। हम सभी लोग स्पोर्ट्स के लिए ही कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स एजुकेशन को बुला दिए, स्पोर्ट्स को एज ए करियर बना दिए। जरूर सर, हमारी जितनी भी हेल्प होगी हम करेंगे। बिल्कुल जी सर। पिछले 5 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं। अब जाके पेरेंट्स बोलते हैं कि यस, पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स में भी करियर है। जी जी। पहले तो बोलते थे कि खेलने जाएगा क्या करेगा, लेकिन अब खेलने में कैरियर है, क्योंकि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का सब्जेक्ट है, स्पोर्ट्स स्पेशल कोचिंग है, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट का है, स्पोर्ट्स लॉ है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है। तो
बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं हिंदुस्तान में जिसके लिए पहले बाहर से लोग आते हैं। तो सभी के लिए ये अच्छा है कि पेरेंट्स को भी हम अब निश्चिंत कर सकते हैं कि खेलने में चिंता ना करें, बच्चे का करियर अच्छे से हो। और आप तो सभी स्पोर्ट्स के कोचेज हैं, तो हेल्दी बॉडी है और हेल्दी माइंड, एवरीबॉडी नोस। तो हमारे सबसे बड़े भीष्म पितामह डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि पिछले 35 साल से इंजीनियरिंग कॉलेज के, एक कॉलेज में मान लीजिए 4000 स्टूडेंट एक साल में पढ़ता है, तो 35 साल में आप लगा लीजिए कि 1,20,000 स्टूडेंट को तो ये सीधा कर चुके हैं। बड़े सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मगर उससे भी ज्यादा बड़े सॉफ्ट एकेडमिशियन हैं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी। जी सर, थैंक यू फॉर गुड इवनिंग। हमारी जितनी उम्र है उतना आपका अनुभव है। थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली आज जो डॉक्टर मनीष ने जो इंफॉर्मेशन दी है, इट इज वेरी वेरी नॉलेजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ईच एंड एवरी पर्सन। पेरेंट्स को जरूर पता होना चाहिए कि मैं सोच पाता हूँ अगर आज से 35 साल पहले मुझे पता होता तो शायद मैं अपने एक आध बच्चे को किसी को स्पोर्ट्स में निकाल देता, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। अभी हम इसको अवेयरनेस को स्प्रेड करें और तभी हम कह पाएंगे कि खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया। थैंक यू। देव सर अनम्यूट कीजिए। सर का म्यूट हो गया शायद। ये तो डॉक्टर साहब आप कहाँ से हैं दुबे सर? जी आपके मैंने ग्रुप फोटो लिया था अभी। मैं उत्तराखंड से हूँ सर। ओके। हाँ अभी आप ही से तो बात हो रही थी, अभी चेहरा अभी मैंने आपका अभी देखा। ओके। मैं उत्तराखंड से हूँ सर, और यहाँ पर ही हम मेरा भी शुरुआत यहीं से हुआ है, उत्तराखंड से, अल्मोड़ा से। ओके। अभी सर कहाँ पे? उत्तराखंड में ही अभी आप? जी हाँ। मैं दिल्ली एनसीआर था और उसके बाद मैं फिर उत्तराखंड आ गया हूँ। और यहीं से सर अपना जो है वर्क चलता रहता है, और यहीं से बच्चों को प्रमोशन भी होता है, और ये सारा स्पा एक्टिविटीज, सारी जो एक्टिविटीज चलती है वो भी यहीं से चलती रहती है। मैं थोड़ा सर के बारे में बताता हूँ। सर एयरफोर्स में थे, बीटेक किया इन्होंने, फिर जेएनयू से इन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जुड़े रहे, देश विदेश की सारी बातें रहती हैं। और 20 साल दिल्ली एनसीआर में सबसे रेपुटेड मैनेजमेंट कॉलेज है गाजियाबाद का, वहाँ 20 साल इन्होंने सेवाएं दी अपनी। और अब ये स्पा इंडिया को समर्पित हैं, क्योंकि खुद भी एक एथलीट रहे हैं, और अमरोहा में माताजी की भी सेवा कर रहे हैं। घर परिवार भी, इनके भी बच्चे अब 12th करके बड़े हो गए हैं, तो अब इन्होंने मातृ सेवा, मतलब भारत माता की भी सेवा और माताजी की भी सेवा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और साथ में देश की सेवा की हमारे युवाओं के लिए एक स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट बन, एक मोटिवेशन। तो स्पेशली जो डिफेंस की ट्रेनिंग होती है, स्टूडेंट पास आउट करें एग्जाम, उसमें हेल्प करते हैं। क्योंकि पहाड़ों से बहुत बच्चे आजीविका के लिए मैदानों में आते हैं। कहते हैं ना, पहाड़ में पानी नहीं रुकता जी, वो सारा मैदानों पर आ जाता है। लेकिन इन्होंने थोड़े से वहां जाके बंद लगाए हैं कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, हम तुमको यहीं से ही आर्मी में, एयरफोर्स में और स्पोर्ट्स में आपको एक अच्छा करियर दें। तो बहुत ही सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं साथ में जी, और बड़े अच्छे स्तर पर। सर अभी अल्मोड़ा में है सर? अल्मोड़ा बताया ना आपने? हाँ जी जी। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जब हम लोग ने शुरुआत किया था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s सर, तो 80s और यू कैन से 77 80s, तो उस समय स्पोर्ट्स के बारे में कोई लोग ज्यादा बोलते नहीं थे। जैसे यस, आपका ये जो टैलेंट हंट है ना सर, ये उस समय शुरू हुआ था ना। आई टेल यू, ये सही और ये सब जो है, ये उस समय शुरुआत हुआ था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी का जो है टैलेंट हंट और
तब ये माना जाता है। यस सर, 1984 में फर्स्ट टाइम साई ने विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, सोवियत उस टाइम यूएसएसआर टॉप मतलब पावर होता था ओलंपिक में। तो जब हमारा ओलंपिक में 5th पोजीशन आया हॉकी में, जो कि हॉकी हमारा एक ट्रेडिशनल मेडल रहता था ओलंपिक में, तो 5th हमारी डिप्राइव इतनी कंडीशन होगी कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने सोचा कि टैलेंट हंट किया जाए, तो सोवियत एक्सपर्ट बुलाए थे। जी सर, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे, ये 1984 के बाद ही स्टार्ट हुआ था टैलेंट। बिल्कुल, आई एग्री। अब पेरेंट्स तो नाम भी नहीं लेते थे। आपको मैं बताऊं, आज मैं शेयर कर रहा हूं देव सर कि मेरा ब्रदर एक बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था, राइट? तो चुपचाप मुझसे पूछा, भैया क्या फुटबॉल में खेल लूं, बंगाल के कोच आए हुए हैं। तो मैं कहा नो नो डोंट डू दैट। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कोई भविष्य नहीं पता था, राइट सर? और डरते थे पेरेंट्स, अब पापा से कौन कहेगा कि ये बच्चा खेलने जाएगा या ये करेगा। और आज मैं उसी चीज को फिर देखता हूँ कि हम ही लोग, सी दिस इज लाइक अ फुल सर्किल, राइट सर? फुल सर्किल वी हैव कम, नाउ वी आर प्रमोटिंग दीज थिंग्स। पेरेंट्स के मन में जो हिचक होता था कि बच्चे यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, राइट सर? और मैं आपको बताऊं, हिल एरियाज में तो डिफेंस एंड स्पोर्ट्स दो ही सबसे बड़ी चीज है, एजुकेशन, डिफेंस, स्पोर्ट्स, राइट सर? और ये दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। आइदर यू हैव टू बी फिट फॉर डिफेंस और फॉर स्पोर्ट्स। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो है बहुत यूनिक चीज है। और स्पा जो करने जा रहा है वो सारे पेरेंट्स को ये सेंसिटाइज कर रहा है कि देखिए आपके बच्चे के लिए कितना बड़ा कैरियर है। तो कहीं ना कहीं देव सर के साथ हमारा भी ये जो एक बड़ा जेल करता है, और मैं भी इससे बड़ा मोटिवेटेड रहता हूँ, राइट सर? और दैट्स व्हाई आई थिंक इंडिया शुड इमर्ज नाउ। देखिए इंडिया बहुत चीजों में इमर्ज कर रहा है, एज अ टेक्नोलॉजी में तो इमर्ज कर रहा है, इकोनॉमी में इमर्ज कर रहा है, अब स्पोर्ट्स एज अ हब भी निकल इमर्ज कर रहा है सर, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी स्पोर्ट्स की भी आ गई है, कोचेज आ गए हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। पहले तो हमारे पास कोचेज नहीं होते थे, चीजें नहीं होती थी, अब तो इतनी सारी चीजें आ गई कि इंडियंस कहीं नहीं कहीं, आप कभी हमने सोचा नहीं था कि जिम्नास्ट में, कभी नहीं सोचा था कि रेसेस में, स्प्रिंट में, अमेजिंग बहुत। और अब हम कह सकते हैं नाउ हमारे जो अभी स्पोर्ट्स टीम गई है टोक्यो में, नाउ वी कैन थिंक ऑफ कि वाओ सब कुछ तो हमारे यहाँ भी आ जाएगा, क्यों सर? तो ये बहुत बड़ा प्राइड है हमारी कंट्री के लिए, बहुत बड़ा हम लोग के लिए प्राइड है। और इसी से हम लोग ये कह सकते हैं कि स्पा भी एक कमिटमेंट शो कर रहा है बच्चों के लिए कि मैनेजमेंट का प्रोग्राम कीजिए, और आप लोग के लेक्चर्स के थ्रू बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि या वी कैन डू दिस। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। और मैं तो सजेस्ट कर रहा था सर देवेंद्र सर को कि वी कैन स्टार्ट सम सर्टिफिकेट कोर्स, ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स आल्सो, लाइक इन फूड एंड न्यूट्रिशन। हाँ, ये हमने किए हैं शुरू। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि सब लोग मिल जाएंगे, जब हम सब लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे तो अल्टीमेट एम पूरा होगा कि हमारे स्टूडेंट को मैसेज जाएगा। राइट सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बहुत चीजें शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और आई थिंक अब हम एक और हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं, मीरा नारायणे। आप परिचय देंगे मीरा नारायणे जी? आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम मीरा नारायणे। Hello sir. Hello, welcome ji, welcome. Yeah. Yes, my name is Meera Narayan. I'm basically from the Maharashtra, Pune. Very nice. And just now I'm done with a master's degree in yoga. Okay. Because earlier graduation was in the computer science and engineering. Oh my God. See, transformation. Yeah. That's great. Good to hear you. Yeah. So looking forward in the same field. Very nice. Very nice. You are most welcome. You can note down our website www.spaindia.in. So, you know, sir, Anirudh, plastic engineer. Yes, I know. From Ahmedabad. He is going to Japan now. Wow, for 1 year program. One of the plastic engineer, he did his BTech in plastic engineering from Ahmedabad. So he did the sports management course from SPA India, and he got the scholarship from Japan government. So ultimately engineers are marvels. Dr. Dubey भी engineer हैं। नहीं सर, मैं तो कहूँगा कि एसेंस क्या है? एसेंस है स्पोर्ट्स। जिस बच्चे ने स्टेडियम पकड़ लिया, आई होप डॉक्टर मुनीस विल एग्री टू माय स्टेटमेंट, जिस बच्चे के माँ बाप ने अपने बच्चे को स्टेडियम दिखा दिया एक बार सर, वो बच्चा लाइफ लॉन्ग हमेशा जो है डिसिप्लिन रहेगा, फिट रहेगा, और हमेशा जो है मोटिवेटेड रहेगा। क्यों सर? आई होप इट इज डेफिनेटली, एब्सोल्युटली राइट सर।
सर बिल्कुल, कम से कम अपने बच्चे को जिस भी शहर में एक स्टेडियम अच्छा सा है, और नहीं तो अब तो हमारे पास लैंडमार्क है, मोटेरा स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम है, सर कोई भी स्टेडियम दिखा दीजिए और बच्चा जो है मोटिवेटेड हो जाएगा। क्योंकि हम लोग तो सर, मैं पहली बार देखने आया था नेशनल स्टेडियम दिल्ली का, जब पहली बार दिल्ली आया था 86 में, तो मैं नेशनल स्टेडियम देखने गया था कि कैसा होता है स्टेडियम। सर ये देखिए, जस्ट आई एम शेयरिंग विद यू एंड आई वाज सो मोटिवेटेड। मैंने और कुछ नहीं कहा, बाकी बच्चे कोई फिल्म देख रहा है, कोई कहीं घूमने, मैं नेशनल स्टेडियम घूमने गया था जस्ट कि देखे कितना बड़ा स्टेडियम है। सर हम तो पहाड़ से थे, कभी देखा नहीं था, राइट? Now I can say कि yes, this is the spirit we have to cherish, we have to nurture, we have to motivate our young youth so that they should remain happy, right sir? और ये बहुत जरूरी है। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ अरोड़ा सर, ये अभी जी प्लीज। मीरा नारायण ने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया था, मैडम मीरा नारायण ने जी। शी इज वेरी गुड योगा ट्रेनर एज वेल एज मेडिटेशन and expert in pranayama also, yoga pranayama meditation. Very nice. So she had done master in yoga. मेरी स्टूडेंट रही है, मतलब ये रहे हैं। तो इनको स्पा में जोड़ना है और इनकी भी सेवाएं लेंगे, एक लेक्चर बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए योगा एंड मेडिटेशन। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट, इवन बच्चों पेरेंट्स ही, हमारे लिए भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा ये कंडक्ट करते हैं। तो एक मीरा नारायण एक दिन इनका लेक्चर रखेंगे हम, प्राणायाम योगा मेडिटेशन फॉर हाउस होल्ड, या फिर हर कैटेगरी के लोग इसमें मतलब ले सकते हैं। एनीवन कैन, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन की बात हो रही थी, तो 31 को हमारे साथ गेस्ट हैं, आप सब देख सकते हैं। You can see the screen. Yes, sports help to develop discipline by Divya Tamar. She is the director of Sanskriti University. And number 2, you can see the Director General Education Business School Delhi NCR. Learning of failure management through sports. आप दोनों टॉपिक देखिए, दोनों टॉपिक देखिए आप। 31 जुलाई सैटरडे को है, संडे को। तो ये गेस्ट है हमारे 31 जुलाई के, क्योंकि फेलियर मैनेजमेंट भी स्पोर्ट्स ही सिखाता है।